Dhruven Panchal, Sakshi Kumbhal. If you're not putting your mic on, you'll be out. Huh? No, Sakshi is put on the mic. Okay, students, let's move ahead. Students, in the last lecture, we completed with respect to your mechanical properties of solids we consider, or properties of matter. Okay. Now we'll be going with respect to your properties of fluids. And the first property of fluid we consider is so late they are entering in. I don't understand that. Okay, students, the property what we are speaking about is now we are speaking about the concept of surface tension. Students, do keep in mind, students. इसके पहले जो हम लोग ने किया था that was solids where we came across certain elastic constants, students. Young's modulus, bulk modulus, modulus of rigidity. Is that clear? Poisson's ratio, work done in order to extend a wire we consider. Okay, and strain energy per unit volume. So all these concepts which we did in the last lecture, students. Justin Solanki, if Mike is not there, otherwise he'll be out. Now, students, what exactly mean by the term surface tension? इसको पता है surface tension का मतलब क्या है, students? Anyone? Sir, what? Is the audio and video fine with all of you all? Yes, sir. Students, मुझे ये पूछना है, what do you mean by the term surface tension? Anyone? Yeah. Idanshu, what is the answer? Students, is the audio and video fine? Can you hear me and see me properly? Because Hitanshu is trying to put that he's not able to. I don't know, he has a problem all the time, something or the other. वो इतना net use कर लेता है ना, Hitanshu, तो पूरे दिन में इतना net use कर लेता Yes, है कि sir. actual lectures होता तभी you have problems. हाँ Hitanshu? Sir, my net unlimited है sir.
क्या बोल रहे हो? लास्ट टाइम भी तेरा नेटवर्क एकदम वीक था, नहीं अभी सर, भी नेट साउंड ब्रेक हो रहा है माय डियर। अनलिमिटेड है सर, नेट अनलिमिटेड। हेलो सर। साउंड लिमिटेड या तेरा साउंड ब्रेक हो रहा है हितांशु। व्हाट्स अ प्रॉब्लम? लेकिन तेरा आवाज एकदम ब्रेक हो रहा है हितांशु। The net is unlimited, but your this is not proper because you're not able to see me. That's what you're saying. It. Tell your net guy to clear the issue. Okay. Now, please, students. Now, my question is, students, can anybody tell me what exactly mean by the term surface tension, students? Surface tension का मतलब क्या है? चलो fast. ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और ये बहुत स्टूडेंट्स को ड्राई लगेगा यानी थोड़ा बहुत, लेकिन इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट एंड द चैप्टर इज दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर इज आल्सो गुड इनफ द प्रीवियस पार्ट जैसे ही. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सरफेस टेंशन? तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है that the free surface सर सरफेस पे फोर्स लगाना, लाइक ग्रेविटी। At rest, the of course, tension experienced by the surface of a fluid. absolutely correct. Free surface, the free surface of the liquid is under constant tension. अभी देखो, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का मतलब क्या? तो फ्री सरफेस का मतलब क्या स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ. फ्री सरफेस का मतलब क्या? लेयर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर. स्टूडेंट्स, इज दिस मच विजिबल टू यू? ये बोर्ड इतना विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. वापस मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना. अगर किसी ने पूछा सरफेस टेंशन का मतलब क्या है, तो तुम्हारा आंसर क्या है? फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज अंडर कांस्टेंट टेंशन. अगर किसी ने पूछा सिर्फ फ्री सरफेस का मतलब क्या है, तो मैंने लिखा लेयर इन कांटेक्ट विद एयर. कौन सा लेयर? लिक्विड लेयर इन कांटेक्ट विद एयर. यानी द सरफेस मॉलिक्यूल्स, that is surface molecules of liquid, okay, are in contact with air and are under constant tension called force due to surface tension. Students, is this much clear? ये एक theoretical statement है. Students, are these writings audible to your? Can you see it properly and is it audible properly? यस सर। वापस से बोल रहा हूँ, फ्री सरफेस Yes, यानी sir. layer of liquid in contact with air or which is under constant tension, that is surface molecules of liquid are in contact with air and are under constant tension called force due to surface tension. अभी एक theoretical statement डाल दिया मैंने. ये जो स्टूडेंट स्टेटमेंट आया वो थ्योरी है. तो यहाँ पे भी अगर कोई स्टूडेंट्स होता तो बोलेगा सर अभी मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या बोलना क्या चाहते हो. ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि surface of a liquid is under tension? तो let us understand that. उसको हम समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज लूँ कि मैंने तुम्हें एक कंटेनर दिया है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्लास कंटेनर है. Students, I am giving you a container. It's a glass container, students. Okay. और ये इसका बेस है और ये साइड है और यहाँ पे मैंने लिक्विड दिया हुआ है, वाटर दिया है. सपोज मैंने वाटर दिया है, इसमें पानी भरा हुआ है. तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है ना.
यानी अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है जो ब्लैकिंग है वो क्या है? तो तुम बोलोगे सर ये तो सारे ग्लास मॉलिक्यूल्स है, ये ग्लास मॉलिक्यूल्स है। तभी हो क्या रहा है, अगर तुम इसको अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे ना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, अगर ये एंड को, ये सारी चीजें तुम्हारे मॉडल में नहीं थी बट ये बहुत तुम्हें अच्छी तरह से समझाएगा कि सरफेस टेंशन का मतलब क्या है। अगर सपोज ये एंड को अगर मैंने अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखूं, उसका मतलब मैंने यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास ड्रॉ किया है, उसका सर देखो तो कैसे दिखेगा मालूम है? यही जो सरफेस है तुम्हारा, ये जो सरफेस है ना लिक्विड, वो तुम्हें थोड़ा सा इस तरफ जाते हुए दिखेगा। यानी तुम्हारा जो सरफेस ऑफ वाटर है ना, उसको उस तरफ एक पुल मिल रहा है, देखो ऐसा चढ़ान है। ये तुम्हें कभी दिखेगा मालूम है? जब तुम एक्चुअली व्हेन यू सी इनटू एन अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलो इसको मारो गोली। शायद तुम्हें ये पता होगा कि अगर तुमने ग्लास लिया है, अगर सपोज तुमने ग्लास लिया है और उसके अंदर मर्क्यूरी, तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ग्लास के अंदर मर्क्यूरी will it give you a convex shape meniscus या concave shape meniscus? बताओ, anybody knows it? ये ग्लास ट्यूब दिया है और उसमें उसमें मर्क्यूरी डाला मैंने, सोचो कि मर्क्यूरी डाला मैंने, ओके तो मुझे ये बताओ ये जो मर्क्यूरी अंदर है, will it give you a concave meniscus या convex meniscus? Couldn't just given the answer. Anybody else? Anybody else? इसको बोलते हैं कॉनकेव, चुल्लू, और ये है कॉन्वेक्स। तो तुरंत तुम्हें याद होना चाहिए, अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। आई डोंट नो हाउ मेनी फैमिलीज मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस। रुखसा क्या कर रही थी? यानी अगर वायरल इन्फेक्शन किसी भी फैमिली में हुआ होगा तो उन्होंने थर्मामीटर यूज किया होगा। शायद तुमने भी थर्मामीटर अगर यूज किया होगा तो तुमने टेम्परेचर रीड किया होगा। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर रीड करने के टाइम पे तुमने देखा था मर्क्यूरी कैसा था? या ऐसे ही देख लिया खत्म कर दिया? मर्क्यूरी कॉन्वेक्स फॉर्म कर रहा था, कॉन्केव नहीं फॉर्म कर रहा था। तो कुंज इज राइट, ये है कॉन्वेक्स। ये तो कैसा बल्ज है, यानी तुम्हारा जो रीडिंग था ना वो ऐसे टैंजेंट रहता है ना, वो वाला तुम्हारा रीडिंग था। ये तुम्हें ध्यान में देना। तो अभी देखो ये शेप किसकी वजह से है? भाई भाई ये शेप है सरफेस की वजह से, सरफेस की वजह से है। यानी एयर है, अच्छा ऊपर 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 मर्क्यूरी वेपर्स होंगे कि वो तो क्लोज ट्यूब था और साइड में ग्लास है, तो इट्स अंडर टेंशन। यहाँ पे भी सरफेस मॉलिक्यूल अंडर टेंशन। अभी तो मुझे कैसे कैसे प्रूव करोगे टेंशन है? कैसे आप प्रूव करोगे कि ये सरफेस मॉलिक्यूल सेक्शन में? तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, काम देखना, तो मैं क्या करूँगा, एक एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ले रहा हूँ। सोचो कि ये एक मॉलिक्यूल कैपिटल एम है, ओके। अभी ये जो मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुना, ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिया है कैपिटल एम, ओके, दिस मॉलिक्यूल के अराउंड, ध्यान से सुनना, इस मॉलिक्यूल के अराउंड सपोज इफ आई कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनरी स्फीयर, ये है मेरा इमेजिनरी स्फीयर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड, और इसको मैं नाम दूंगा मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये है मॉलिक्यूल सेंटर में, इसके अराउंड मैंने एक इमेजिनरी स्फीयर लिया। स्फीयर का मतलब क्या? ये जो स्फीयर पूरा मैंने अगर सपोज मैं बोर्ड के बाहर निकाल दूं तो एक फुटबॉल की तरह लगेगा, लेकिन वो मैं बोर्ड के अंदर ड्रॉ करूंगा तो तुम्हें सर्कल लगेगा। तो ये है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये एक मॉलिक्यूल एम है जो तो मैंने सेंटर में लिया है, उसके अराउंड मैंने कंस्ट्रक्ट किया है सर्कल जिसका डायमीटर है, इस डायमीटर को मैं बोलूंगा मॉलिक्यूलर रेंज। और ये जो मॉलिक्यूलर रेंज है, इट्स ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग इट? Sir, what is this? My dear, I'm telling you about that I've taken a molecule, and this molecule which I've shown it on the surface, उसी molecule को मैंने लिया यहाँ पे। ये जो molecule मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया उसी molecule को यहाँ पे लिया है। तो ये molecule के अराउंड मैंने एक स्फीयर बनाया है assumption के हिसाब से, और उसका जो रेडियस है उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर रेंज। उसको मैं क्या बोलूंगा? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस।
यानी Okay. ये मॉलिक्यूल के आजू बाजू में भी स्फीयर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, इट्स अ सेपरेशन बिटवीन अराउंड 10 to the 10 around 10 to 13 to 10 to 15 मॉलिक्यूल्स के बीच में का गैप, इतना छोटा गैप है। तो ये तुम्हारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। यानी स्टूडेंट्स, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर सपोज ये तुम्हारा एक मॉलिक्यूल है, अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसके बाहर होगा तो ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करवाएगा। देयर इज नो फोर्स, क्योंकि ये स्फीयर से बाहर है, इन्फ्लुएंस से बाहर है। अगर कोई मॉलिक्यूल अंदर की तरफ होगा तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एग्रीड? Yes. एग्रीड? अगर कोई मॉलिक्यूल सरफेस पे है, ध्यान से सुनना, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे है और वो सरफेस पे, यानी कहने से वो डिस्टेंस डी क्या पार्ट है ना? तो ये Yes. मॉलिक्यूल बीच में भी अट्रैक्शन है। लेकिन बात ध्यान से सुनना, अगर मैं ये M3 लेता हूं तो M3 भी तो उसका भी तो कुछ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। स्टूडेंट्स, M3 का भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सपोज अगर मैंने M3 का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे बना दिया, है ना? तो इस M3 के, ध्यान से सुनना, इस M3 के अराउंड दूसरा एक शायद M4 भी तो होगा। तो देखो, M3 पे ये M4 इस तरह फोर्स एक्ट कर रहा है, ये M इस तरह फोर्स एक्ट कर रहा है, ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो रहा है, so they can cancel out also, they can cancel out also। यानी अगर किसी ने पूछा मुझे, सर यानी आप यहाँ पे बताना क्या चाहते हो, तो मेरा कंसेप्ट ये है कि अगर मैं कोई मॉलिक्यूल M लेता हूँ और उसके अराउंड मैंने एक मॉलिक्यूलर रेंज कंस्ट्रक्ट किया जिसका रेडियस 10⁻⁹ मीटर है, यानी 1 नैनोमीटर है, तो जो मॉलिक्यूल उस स्फीयर से बाहर होगा उनके ऊपर देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मॉलिक्यूल उस स्फीयर के अंदर होगा तो श्योरली देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, they are having a force of attraction, but if there is some other molecule getting attracted to it, तो वो cancel out होके they are free to move। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Doesn't matter, वेदांत सर, सॉरी सर, रिनोवेशन स्टार्टेड टुडे। क्या बात है वेदांत, रिनोवेशन चल रहा है घर के अंदर। वेरी गुड वेदांत। बी केयरफुल अबाउट द वायरल इन्फेक्शन। When you are renovating your home, you call people inside. Okay, please see to that you take the RT-PCR test also। नहीं तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो 15 दिन स्टडी से दूर चले जाओगे। रिनोवेशन हो जाएगा, स्टडीज हो जाएगी अलग से। प्लीज बी वेरी केयरफुल नाउअडेज। ओके, बिकॉज यू ऑल आर नॉट वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स, यू ऑल आर, नोबडी इज वैक्सीनेटेड, दैट्स द रीजन। वैक्सीनेशन से ये नहीं होगा कि वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा लेकिन उसका जो सीवियरिटी है वो बहुत कम हो जाता है। दैट इज द ट्रुथ। ओके, सो आई वाज स्पीकिंग अबाउट कि सरफेस टेंशन का मतलब क्या है। तो ये जो मॉलिक्यूल है उसके अराउंड एक स्फीयर होता है। If any of the molecules comes into its vicinity, of course there will be a force of attraction, because as an intermolecular force of attraction we consider, okay? But if the molecule is beyond this 10⁻⁹, there is no force acting onto it, and that molecule is free to move। तो वैसे ये मॉलिक्यूल मैंने लिया है, ध्यान से देखना, ये मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसी मॉलिक्यूल के अराउंड मैंने सपोज एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना दूंगा। चलो, ये देखो मैंने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना दिया, जो ऐसा बना है यहाँ पे बना दिया। अभी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का मतलब क्या? तो तुरंत स्टूडेंट बोलेगा, अरे सर अभी तो क्लियर हो गया, ये जो मॉलिक्यूल आपने M यहाँ पे दिखाया है, ये जो M है वो आपका ये मॉलिक्यूल है। आपने बोला कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपने अट्रैक्टिव फोर्स बता दिया, यानी उसके ऊपर एक खिंचाव आ रहा है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, ऐसा कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई वहां से खींच रहा है, कोई वहां से खींच रहा है। तो ये जो खिंचाव है इसको हम बोलते हैं टेंशन, और जो सरफेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सर जब भी आपने मॉलिक्यूल को सरफेस पे दे दिया है तो सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूल का वेट नीचे की तरफ होगा, हाँ उसका mg, ये भी एक फोर्स है। दूसरा सर, ये सारे जो एयर मॉलिक्यूल्स है ये भी तो इसको अट्रैक्ट करेंगे, ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर, ये भी तो फोर्स है ऑफ कोर्स।
एयर मॉलिक्यूल का फोर्स होगा। सर ये यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो सेमी सर्कल तुम्हें दिखाई दे रहा है, सेमी सर्कल या सेमी हेमिस्फेरल स्फीयर दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है वो किसका है? वॉल ऑफ द कंटेनर का है। तो सर यहाँ पे जो ग्लास मॉलिक्यूल्स है वो भी तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उनका। अरे हाँ सर, ये तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ग्लास मॉलिक्यूल। और सर ये जो लिक्विड है वो अंदर की तरफ है, यानी ये जो आपका मॉलिक्यूल है वाटर का, उसके ऊपर ये जो है फोर्स, ये बाकी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है ना। ऊपर से ये जो मॉलिक्यूल है अगर वॉल के साथ में है तो इसके ऊपर एक और एक फोर्स होगा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम बोल सकते हैं। देखो कितने सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी यहीं पे अगर रुखसार को, सपोज अगर रुखसार को वहां पे बांध दिया और रुखसार के ऊपर ऐसा खींचा, ऐसा रस्सी से बांध दिया, कोई रुखसार को इस तरफ खींच रहा है, कोई रुखसार को उस तरफ खींच रहा है, कोई रुखसार को इस तरफ खींच रहा है, सोलंकी इज लाफिंग, कोई रुखसार को इस तरफ खींच रहा है, बेचारे रुखसार की हालत तो खराब हो जाएगी, है ना। तो रुखसार के यहाँ में अंडर कांस्टेंट टेंशन, हमेशा टेंशन में रहती हूँ, पता नहीं कौन कहाँ खींच के लेके जाएगा मुझे। दिस इज कॉल्ड एज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और उसकी वजह से क्या होता है मालूम है? ड्यू टू force of surface tension, comma, the free surface of the liquid behaves as a stretched elastic membrane. यानी surface of the liquid behaves like a rubber membrane. रबर मेम्ब्रेन की तरह वो बिहेव करना शुरू करेगा, यानी इलास्टिसिटी एक्सपांड भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। यानी कभी कभार ये जो सरफेस ऑफ द लिक्विड है, ये जो सरफेस है लिक्विड का, वो अपने आप एक्सपांड भी होगा और अपने आप कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक मेम्ब्रेन। और ये किसकी वजह से है? ड्यू टू फोर्स यूनिट सरफेस टेंशन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव्स एज अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। बट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स अभी लिख रहा हूं, बट however the surface of the free surface of the liquid always tries to attain minimum. But however, the free surface of the liquid always tries to attain minimum elastic potential energy. Minimum elastic potential energy. So उसका elastic potential energy कम होना, यानी it will try to contract and expand. Expand होगा तो वो contract भी होगा, contract होगा तो but however the surface of the liquid always tries to attain minimum elastic potential energy and this energy remains constant, and this energy remains constant. So how यानी अगर वो expand होता है, ध्यान से सुनना, एक्सपांड होगा उसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। प्लीज स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अगर वो मेम्ब्रेन एक्सपांड होता है तो शायद ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन हाउएवर सरफेस ऑफ द लिक्विड विल ट्राई टू अटेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे चले गए तो वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट। तो कभी एक्सपांड कभी कॉन्ट्रैक्ट, कभी एक्सपांड कभी कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कंसिस्टेंट नेचर है सरफेस ऑफ द लिक्विड का, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द surface of the liquid, and that is what we call as surface tension. सर वो लास्ट वाला पार्ट नहीं समझा। Which one? Sir, This what one? you just told. Yes, sir, that one. However, the free surface of the liquid always tries to attain minimum potential energy, elastic potential energy. This I'm going to explain you with another diagram. And this energy all the times remains constant because, however, the total mechanical energy किसी भी system का हमेशा constant होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से सुना, चलो ये नहीं समझ में आया, चलो hell with it. इलास्टिक मेम्ब्रेन समझ में आया क्योंकि वहां पे खींचा हुआ है,
उसका मतलब क्या होगा, मेम्ब्रेन कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। अभी मुझे बताओ, मेम्ब्रेन बढ़ना उसका मतलब क्या होगा? शायद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स भी अंदर आएंगे। ध्यान से सुनना, अगर 40 मॉलिक्यूल्स है, मेम्ब्रेन अगर बढ़ता भी है, कुछ स्पेस भी बनता है, तो 5 या 6 मॉलिक्यूल्स अंदर और आ गए, व्हाट्स गोना हैपन? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, बट ऑलवेज इट विल ट्राई टू अटेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, उसको कांस्टेंट रखना है, वापस वो श्रिंक भी होगा। It'll try to maintain some of the molecules might drag, maybe evaporate or might drag down in that case. तो ये constant nature होता है free surface of the liquid, और ये unknowingly हमेशा surface elasticity से हिसाब से ही चलता है। तो now when I speak about surface tension, तो surface tension का मतलब क्या है? सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, the free surface, that means the layer in contact with the air of the liquid is under constant tension. The surface molecules of the liquids are in contact with air and under constant tension called force due to surface tension. To understand force due to surface tension, I've considered a molecule M. This molecule M have a surrounding sphere called the sphere of influence. The radius of the sphere of influence is of the order 10 to the power of -9 meter. If the molecules are within it, will have a force of attraction. Those which are outside the sphere of influence, no force acting onto it. Those which are on the surface has force of attraction. But if you have any other molecule next to it at the same distance, then the two forces will be equal and magnitude opposite in direction, and therefore this molecule will be free to move. Summation of all the forces acting onto it will be 0. So that's how we speak about the surface molecules are under constant forces acting. Now, if somebody asks me, so what are the forces acting? So I've taken a simple diagram. मैंने इसी surface के ऊपर एक molecule ले लिया. अगर मैं इसको magnifying glass से देखूं, तो मेरा पानी थोड़ा सा wall के साथ में incline चला गया है, उस तरफ चला गया है. इस तरफ क्यों गया है? ये शायद pull इसका ज्यादा होगा, उसका force ज्यादा strong होगा. यानी ये molecule के ऊपर कितने forces act हो रहे हैं? तो कोई भी अगर किसी ने पूछा how many forces are acting for a molecule which is on the surface and in contact with the wall, listen carefully, molecule is on the surface and in contact with the wall, तो कितने forces है? तो सबसे पहले उसका weight of the molecule, दूसरा उसका normal reaction force, तीसरा air का force, चौथा glass का force, पांचवा दूसरे molecules of water है उसका force. इसमें से कौन सा force लेना जरूरी है? ध्यान से सुनना, इनमें से force exerted by glass वो थोड़ा सा strong force होता है, and the force exerted by this water molecule वो strong है. यानी बाकी जो force है ना, जैसे कि weight of the molecule, normal reaction force, force exerted by air, ये comparatively weak forces है students. तो जब भी हम बात करेंगे ना surface tension के बारे में, तो इन 3 forces को हम शायद neglect कर भी लें, हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये कंपैरेटिवली बहुत ही छोटे हैं, उनको निगलेक्ट, यानी कि कौन से फोर्स दो मेनली हो रहा है, एक ये और एक ये, वॉल ऑफ द कंटेनर एंड वाटर वी कंसीडर. बट ये इसको यस Sir, why is the force exerted by the air in an angle? ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग द रिजल्टेंट. Okay. if I happen to go for a quarter of a circle, force is vectors my dear. Yes, sir. अगर मैं क्वार्टर ऑफ द सर्कल लेता हूं, अगर सपोज मैंने क्वार्टर लिया है, क्वार्टर ले रहा हूं, ये लिया है क्वार्टर लिया है, ओके, ये क्वार्टर, ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं. तो बोलेगा सर एक फोर्स ये गया, इसका फोर्स यहाँ पे गया, शिफ्ट द वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, रिजल्ट इन दिस डायरेक्शन में आ गया, है ना, टेल हेड वेक्टर्स. Yes, sir. Sir, and the same is for due to water also, right? यस, तो इसका भी तुम्हारा रिजल्ट इन इस तरफ आएगा वेक्टर्स की. Sir, and what is the other force opposite to normal? इट्स अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्लास मॉलिक्यूल्स व्हिच इज इन फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, तो उसका अलोंग द डायमीटर चलेगा. Yes, sir. Got it. ग्लास, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्लास. इज दिस मच क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All of you all, not 1, 2 and 3. I'm teaching all of them. Is it clear to all the students? Yes, Ayush, sir. Rishi, Akanksha, Sujal, Mistry, Dhruv. What about you? Aditi, Alok, Bhumika, Deepak Lohar to aata hai. Daksha Solanki, are you getting it? Yes, sir. Diya, Hitanshu Bichara.
Josh, what about you? Jill, Yes, Jaira, sir, I told. Kunj, Mahi, Niharika, Om Shinde, Pratik, Rishi Dave, are you getting it? Yes, sir. Sakshi Kumbar, are you getting it? Sumicha, Sanika, Uday, Ved, Vedant, Vibhari. Hope that you are able to get it, students. Okay. Can I erase this part? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ, students? 1 minute, sir. Okay, just let me know, please. इस students क्या erase कर सकता हूँ मैं अभी? Yes, sir. Then. Okay. I'll move further. Right. Now, since I said it that the surface of the liquid always tries to attain constant energy we consider. I'm speaking about that. But before going for that particular, अभी मैं इसके illustrations लेता हूँ कि how can you say that the free dances and how can you say that the free surface behaves like an elastic membrane? उसका मैं examples दे रहा हूँ. Listen carefully, students. अभी examples कैसे हैं? For example, अभी तुम क्या करो मालूम है? I don't know about it. If in case if you come across तुम अगर बीच की तरफ जाते हो या तो चौपाटी या जू बीच की तरफ ऑन द वेस्टर्न सबर्ब्स वहाँ पे चौपाटी जू बीच के ऊपर there are certain people who sell that particular soap solution और एक रिंग होती है आगे अगर get small kids they try to immerse inside और फिर ऐसा blow करते हैं तो ऐसे bubbles आते हैं याद है कुछ मालूम है ऐसा होता है
Yes, sir. एक ring है, Yes. then you blow and you'll get bubbles. वो surface tension का concept है. स्टूडेंट सरफेस टेंशन इज यूज्ड अ लॉट. ये जो ब्रश भी करते हो ना तुम, और भी ब्रश करना जरूरी है, नहीं तो म्यूकोसिस का प्रॉब्लम होता है करके. ब्रश रेगुलरली करना जरूरी है. तो ये जो ब्रश है उसके अंदर भी सरफेस टेंशन है, जो फेस द मटेरियल व्हिच यू यूजिंग इन द पेस्ट. तो ये कंसेप्ट क्या है? हाँ तो सुनो, अभी ये कंसेप्ट हम बता दो सरफेस टेंशन के बारे में, इलास्टिक मेम्ब्रेन के बारे में. नथिंग एज कि आई हैव अ रिंग. स्टूडेंट ध्यान से देना, एक रिंग है, ओके, एक बेटा एक रिंग है और इसका ये स्टैंड है, ये हैंडल है, ओके. अब मैंने क्या किया मालूम है, ये रिंग पूरा हॉलो है, इट्स अ हॉलो रिंग. और मैंने क्या किया, इस हॉलो रिंग के अंदर मैंने एक थ्रेड बांधा हुआ है, एंड दैट थ्रेड आई हैव टाइड इट फ्रॉम एंड ए टू एंड बी ऑफ दिस, but the length of the thread is longer than the diameter. The length of the thread is longer than the diameter. Is that clear to anyone? It's actually anyhow slackened form. Sir, can you tell again? I didn't understand it. What's the reason your net is not fine or what? Sir, little there's disturbance. Sir, it's Okay. raining right now. Sir. Oh my God, this is really problems going on. रेंज भी बहुत यानी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. लाइव लेक्चर्स होते हैं तो उसके लिए, and network nowadays is really creating problems because your people are now going for more of Airtel and Jio in that case, and the oversubscription is trying to create problems. Okay, मिस कॉल्स भी हो जाते हैं, कॉल किसी को लगाओ जाता है कहीं और. Yes, sir. होता है. वेरी गुड. Sir, in our area also the whole thing broke down, and then like we had to use mobile data for 2 days. We had to call them, they don't pick up. This is the problem is happening now because everybody is online. And today, yesterday only I saw, I read an article, students. Yesterday only it had come. शायद the Maharashtra government is deciding to call off even the online sessions. Not for coaching classes. Coaching classes के लिए just schools के और colleges को online होता है because the students are fed up क्योंकि उनका screen time बढ़ गया. तो I don't know about it how many colleges के अंदर ये शायद सही है गलत है, but उनके साथ कंपनी about it कि शायद उसके लिए भी आएंगे. Maybe they are giving a break of a month from online sessions from schools and colleges to students. So then how will they like study? This is what cut down in the syllabus. Lekin for JEE and NEET and advanced there is no cut down. They are very smart. NTA people are very smart. NTA people are there कि तुम भले cut down करो ना, कोई problem नहीं. हम question number of questions बढ़ा देंगे. तो तुम्हें choices मिलेंगी. अगर तुमने नहीं किया तो मत अटेम्प्ट करना, जो किया है उसको अटेम्प्ट करो. और तुम्हारे ऐसे questions होंगे जो तुमने अटेम्प्ट किया हुआ, तुमने पढ़ा हुआ. There is nothing to be for you. Everything has to be done. तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है. साइंस स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है. स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू बिकम, एंड दिस इज अ फैक्ट, ये होना ही चाहिए. अगर तुम्हें अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, या एनी काइंड ऑफ साइंस फील्ड के अंदर जाना है, यू हैव टू बी कम आउट विथ योर ट्रू एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी. नॉट जस्ट लाइक दैट इटसेल्फ यू कैन बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर. ओके, सो देयर हैज टू बी सम क्राइटेरिया फॉर इट. ओके स्टूडेंट्स, कम बैक. सो ये वाला क्या मालूम है, ये वाला एग्जांपल मैंने क्या किया मालूम है, एक रिंग दिया है और रिंग हॉलो है, एंड आई जस्ट tied a simple thread, diameter on the diameter, लेकिन the length of the string is longer than the diameter of the ring. अब मैंने क्या किया, एक सोप सोल्यूशन लिया है, एक बॉल लिया जहाँ पे सोप वाटर है. I took that particular ring and I immersed it into it and gradually मैंने उसको निकाल दिया. जैसे मैंने उसको gradually बाहर निकाल लिया तो मुझे क्या मिला, एक फिल्म मिला. स्टूडेंट्स, ये जो पूरा है ना, वो एक फिल्म है, और इस फिल्म के ऊपर ये थ्रेड ऐसे अलाइन किया हुआ है. लेकिन स्टूडेंट्स, अभी तुम ये थ्रेड को देखोगे तो थ्रेड ना ही लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है ना ही राइट हैंड साइड में जा रही है. उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनना, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, दे आर गेटिंग अ फोर्स. दे आर गेटिंग अ फोर्स बाय विच मॉलिक्यूल्स? by the molecules on the other side. By the molecules on the other side. ये जो blue ink है, ये कौन से molecules है? ये सारे soap molecules हैं. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये जो red ink है, ये जो red ink है, ये red ink क्या है? सर, ये है molecule of thread. यानी ये molecule of thread के ऊपर किसके forces act हो रहे हैं? सर, कोई force इसको इस तरफ act कर रहा है, कोई force इस तरफ act कर रहा है, और ये forces are acting by the different molecules, और ये throughout the length हो रहा है, throughout the length of the string.
Yani there are forces acting. See, look at the forces. There are forces acting perpendicularly. There are forces acting perpendicularly on either side. Listen carefully. There are forces acting perpendicularly on either side. There are forces acting perpendicularly on either side of an imaginary line, drawn where? Where is this particular thread you are finding out? Is this thread on the surface of the soap film? Yes. Is this thread in contact with the air? Yes. उसका मतलब ध्यान से सुनना, ये थ्रेड है, ये जो व्हाइट पोर्शन है ना प्लीज स्टूडेंट्स, इसको सोचो कि ये थ्रेड का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल इसको इस तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ एक्सर्ट कर रहा है, ऊपर एयर भी है, एयर भी तो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, यानी the free surface of the liquid is under constant tension, we consider. That means the thread is under constant tension. तो ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ये कौन सा फोर्स है? सर दिस इज द परपेंडिकुलर फोर्स. ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर फोर्स acting, that is the perpendicular force acting tangentially. Tangentially का मतलब along the free surface. Force acting perpendicularly per unit length. ध्यान से सुनना, per unit length of an imaginary line. Drawn where? Drawn on the free surface of the liquid. Free surface of liquid is called surface tension. Is called surface tension, which is done by variable capital T. तो देखो surface tension, ध्यान से सुनना, surface tension of a liquid, in this case it's a liquid, is defined as force acting perpendicularly. Look over here. Is this force at a right angle? Yes. यानी ध्यान से देखना. Everybody carefully observe the diagram. मैंने दिखाया तो व्हाइट बोर्ड के अंदर, लेकिन ये ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. ये तुम्हारे इमेजिनरी लाइन का ये थ्रेड था. क्या ये फोर्स एक्ट हो रहा है? हाँ सर. अभी इन दोनों के बीच में क्या एंगल हो रहा है? 90 डिग्री. Is this force acting perpendicularly to the imaginary line? Yes. Is it at an angle of 90 degree? Yes. Is it going along the plane, parallel to the plane, parallel to the free surface? Yes. Is it acting on the given imaginary length of the wire? Yes. That is called as tension. तो एक मैथमेटिकल वे ऑफ एक्सप्रेशन देना था, तो कैसे देते हैं उनको? तो अभी सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या होगा? सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, यहाँ पे वाटर है तो वाटर ले सकते हो. So surface tension of a liquid equal to का मतलब is defined as force acting normally per unit length of an imaginary wire, drawn on the free surface of the liquid and acting tangentially along the free surface is called surface tension. So what exactly is SI unit if I have to consider? SI unit Newton per meter. Newton meter inverse. Can you give me its dimensions? Will you say yes? Dimensions will be what? Kilogram meter second square inverse. Sir, Okay. m1 L0 T raised to minus 2. M1 L raised to 2. Sir, L0 T raised to minus 2. So L0 kilogram meter per second square per meter. Okay. So it's L raised to 0. And what will be T raised to minus 2? Yes, sir. Yes, that's your answer. ये हुआ तुम्हारा सरफेस टेंशन. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. यानी देखो ये जो थ्रेड है, सो यानी तुमने क्या कि मतलब रिंग लिया है, थ्रेड डाला है और तुमने एकदम ग्रेजुअली बाहर निकाला, तो थ्रेड तुम्हारा इक्विलिब्रियम में है स्टूडेंट्स. ओवर हियर व्हेन यू सी द थ्रेड इज इन equilibrium students, that means algebraic sum of all the forces acting on the thread on either side will be equal to 0.
तभी जाके थ्रेड इक्विलिब्रियम है। लेकिन क्या उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? एक्ट हो रहे हैं ना, क्यों नहीं एक्ट हो रहा है? अरे तभी यहाँ का मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को फोर्स दे रहा है, वाटर मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल थ्रेड मॉलिक्यूल को दे रहा है, उसी थ्रेड मॉलिक्यूल को यहाँ पे भी तो फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी तो मॉलिक्यूल है वो भी तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। So of course is the force, लेकिन फोर्स क्या? परपेंडिकुलर एंड एक्टिंग अलोंग द प्लेन। now we speak about elasticity of the movement। यानी देखो इसी के अंदर मैंने डेफिनेशन भी डाल दिया। अभी इलास्टिसिटी कैसे करोगे, कैसे आप समझोगे, अभी ध्यान से देखो। इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फिल्म बना हुआ है, देयर इज अ सोप फिल्म इज फॉर्म। ओके, यहाँ पे भी सोप फिल्म है, यहाँ पे भी सोप फिल्म है, एग्रीड। यहाँ पे एयर इन कमिंग इन कांटेक्ट, देखो एयर मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी एयर मॉलिक्यूल। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यानी ये जो एयर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे कांटेक्ट में आ रहा है, यहाँ के मॉलिक्यूल, वही एयर मॉलिक्यूल इस तरफ भी कांटेक्ट में आ रहा है, यानी देयर आर टू फ्री सरफेसेस। अगर किसी ने पूछा हाउ मेनी फ्री सरफेसेस ओवर हियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी फ्री सरफेसेस ओवर हियर वी कंसीडर, सो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में बोल रहा हूँ। अगर किसी ने पूछा कि अगर कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है फ्री सरफेस के ऊपर, तो और मैंने पूछा हाउ मेनी फ्री सरफेसेस आर देयर, your answer will be number of free surfaces will be 2. That is why the air molecule coming in contact on the left hand side molecule as well as right hand side molecules. Therefore, the formula for tension in this case for imaginary wire will be F upon on either side of the length 2L. This becomes your formula for surface tension for this particular water. तो देखो फर्क क्या है, देखो ये फॉर्मूला में और ये फॉर्मूला में फर्क क्या है। तो तुरंत स्टूडेंट बोलेगा सर ये आपने जनरल फॉर्मूला नहीं दिया। टेंशन, surface tension of a liquid is defined as a force acting normally per unit length of an imaginary wire drawn to the free surface of the liquid and acting tangentially। ये तुम्हारा डेफिनेशन है। लेकिन अगर तुम इस डायग्राम को देखते हो और अगर आपने इसको सॉरी नॉट वाटर, सोप लिया, सॉरी वेरी सॉरी, सोप फिल्म लिया, ओके, ये सोप सरफेस टेंशन ऑफ सोप वाटर। तो अगर आपने सोप फिल्म लिया है तो सर मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ हैं, सोप मॉलिक्यूल्स थ्रेड के साथ में, लेकिन साथ में एयर भी तो आ रहा है, यानी एयर मॉलिक्यूल्स राइट हैंड साइड मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी थ्रू आउट द वायर दोनों तरफ तुम्हारे फोर्सेस ऑफ एयर एक्टिंग। और मैंने क्या बोला था, जहां जहां पे एयर कम्स इन कांटेक्ट विद दैट पर्टिकुलर सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स दोस आर कॉल्ड एज फ्री सरफेस, और जितने फ्री सरफेस होंगे वो हमेशा लेंथ के साथ में आते हैं, इसलिए मैंने फैक्टर 2 डाल दिया। So number of free surfaces is equal to 2 and this is factor 2. Students question raise करते हैं कि सर आपने तो फॉर्मूला दिया था F by L, फिर यहाँ पे फैक्टर 2 क्यों डाला? तो मेरा आंसर ये होगा उनके लिए, फैक्टर 2 इसलिए लिया स्टूडेंट्स क्योंकि there are air molecules coming in contact with the soap molecules and they're coming in contact on either side of the imaginary line, therefore I'm taking it factor 2 in the denominator। तो तुरंत वहां पे स्टूडेंट कोई रेज करेगा सर यानी अगर सपोज एक ही तरफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो क्या करते आप, तो मैं फैक्टर 2 नहीं लेता। सर बताओ कैसे, अब ध्यान से सुनना, अभी देखो अभी मैं चेंजेस कर रहा हूं मैं। अगर सपोज वापस यही रिंग, ओके सेम रिंग, ओके दिस इज थ्रेड, सो फिल्म ऊपर की तरफ है। नाउ व्हाट आई डू स्टूडेंट्स, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक नीडल ले रहा हूँ, नीडल पतला सा नीडल ले रहा हूँ और उसको गर्म कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। such a hot needle I'm just letting it coming in contact on the right hand side of the soap film, not on the left hand side। यानी मैंने पंक्चर नहीं किया, मैं उसको पंक्चर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसके अंदर एक जेंटल टच दे रहा हूं हॉट नीडल का जो बहुत ही गर्म है। जैसे तुम हॉट नीडल को टच करोगे होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, क्या होगा स्टूडेंट्स, तुम बोलोगे सर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। यानी आप ये बोलना चाहते हो कि एक तरफ आपने टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ले लिया है और दूसरी तरफ आपने सरफेस टेंशन ले लिया है, इसका न्यूटन मीटर इनवर्स होगा। यानी सर आप ये बोलना चाहते हो कि जैसे आपने गर्म नीडल को यहाँ पे डाल दिया तो जैसे जैसे लिक्विड का टेम्परेचर की जैसे हीट
लिक्विड हो जाएगी। कौन ऑब्जॉर्व कर रहा है? मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्व कर रहा है। किसके मॉलिक्यूल्स? सोप मॉलिक्यूल्स। किस तरफ? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को तो हीट नहीं कर रहा। तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स ऑब्जॉर्व करेंगे हीट तो होगा क्या? सर उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस वो कम हो जाएंगे। जैसे वो फोर्सेस कम हो जाएंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन वैनिश हो जाएगा। ओ यानी सर आप ये बोलना चाहते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, सरफेस टेंशन विल गो ऑन डिक्रीजिंग, so the graph will be a straight line declining graph. Absolutely correct. That means students, surface tension is negative coefficient of temperature dependence. Surface tension of liquid is negative coefficient of temperature dependence. Forget about this. Give me the formula for increase in length with respect to coefficient of linear expansion. तो क्या formula देते हो तुम? तो तुम बोलते हो सर L2 equal to L1 into bracket 1 plus alpha difference in temperature T2 minus T1. क्या स्टूडेंट ये तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. ये कहाँ पे पढ़ा है तुम लोगों ने? हीट एंड थर्मल एक्सपांशन मेटल्स। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? सरफेस टेंशन, ध्यान से सुना, सरफेस टेंशन एट अ गिवन टेम्परेचर, getting it? Surface tension at a given temperature is equal to surface tension at second temperature we consider in that case जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। Is it positive coefficient or negative coefficient? Negative coefficient, then bracket 1 minus alpha। कौन सा टेम्परेचर ज्यादा बड़ा है सर? ये T2 is greater than T1, sorry ये theta 2 में लिख रहा हूँ, theta 2 और ये theta 1। Agreed? So alpha into bracket what? Theta 2 minus theta 1। So जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा surface tension कम होगा। So what the final surface tension we consider is, sorry T2 यहाँ पे आएगा, final surface tension and this is the initial surface tension, 1 minus alpha theta 2 minus theta 1। surface tension को some MCQs में SV लिखते हैं। So surface tension at a given temperature T2 to find out is equal to surface tension at a given temperature into bracket 1 minus what is alpha? Temperature coefficient dependence on surface tension. Temperature coefficient dependence on surface tension. Into bracket what? Final temperature minus initial temperature. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Not only to Ruksar and Solanki. Please, I'm not teaching only these two girls. These are the only two girls in the group who are answering. What about the rest of them? Josh, Sujal, Mistry, Aditi, Patel, Yadav, Aditya, Alok, क्या हो रहा है? Taksha is understanding. Hitanshu, what about you? Diya, Josh, Desai, Om Shinde, are you getting it? Ved, Uday, Shresht. ऋषि दवे नहीं है यहाँ पे? Yes, sir, I am there. Okay, are you getting it? Yes, sir. Okay. Fine. Fine. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो, यानी ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा। एंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, देखो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर सरफेस टेंशन इज ब्रॉट टू जीरो। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ स्टूडेंट्स तो ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल में ये लिखूंगा टेम्परेचर एट विच surface tension of water is equal to 0 will be nearly equal to 100 degrees Celsius. And this is called as critical temperature. यानी जब भी तुमने टेम्परेचर ऑफ वाटर को 100 की तरफ लेके गए, क्लोजिंग टू 100, तब इसका सरफेस टेंशन 0 हो जाएगा, यानी फोर्स है ही नहीं। यानी जैसे तुमने हॉट नीडल पे यहाँ पे टच किया ना स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएगा। अगर उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएगा और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर उनका टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो स्टूडेंट्स क्या ये फोर्सेस दिखाई देंगे तुम्हें? नहीं दिखाई देंगे। तो अभी क्या होगा? अभी जो सोप मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर किसका फोर्स लगेगा? सर उसका फोर्स लेफ्ट हैंड साइड का लगेगा। तो ये थ्रेड जब इक्विलिब्रियम में अभी क्या होगा? सर ये थ्रेड पूरा उस तरफ चला जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन जीरो हो गया। यानी यानी सी लोगो भैया, सी द एरिया ऑफ द सरफेस एंड सी द एरिया ऑफ द सरफेस, सी द एरिया ऑफ द सरफेस, area of the surface. What is this? Elasticity. That means because of this particular force due to surface tension, what has happened? Look at this. Due to the force due to surface tension, what happens? The free surface of the liquid, the free surface of the liquid trying to attain minimum potential energy. Free surface attaining minimum potential energy, and that is what is called as behaving like an elastic membrane. अभी पता चला इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? यही अगर हॉट नीडल मैंने इस तरफ रखा होता तो मेम्ब्रेन इस तरफ आ जाता। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, क्योंकि फोर्सेस इस तरफ ही लग रहा है। सो डज इट बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक मेम्ब्रेन? यस। यही अगर एग्जांपल में दूसरी तरह से देता, ध्यान से देखना, ये दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखना। वापस मैंने क्या किया, एक रिंग लिया है। एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, होप दिस डायग्राम इज विजिबल। इसको मैं वापस मैंने सोप सॉल्यूशन में डाल दिया है, ध्यान से सुनना, और एक थ्रेड में रिलीज कर देता हूँ, उसके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, तो थ्रेड ऐसा है। एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, दैट मींस द थ्रेड इज एक्चुअली फ्लोटिंग इन द सोप सॉल्यूशन। अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अंदर भी सोप है, बाहर भी सोप है। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी फ्री सर्फेसेस आर देयर? हाउ मेनी फ्री सर्फेसेस? तुरंत स्टूडेंट्स का दिमाग चलेगा, सर ये थ्रेड है, अंदर भी सोप मॉलिक्यूल है, बाहर भी सोप मॉलिक्यूल है, आपने उसको हवा में रखा है तो देयर इज एयर, so air coming in contact on the inner molecules of soap, air coming in contact with the outer surface also। तो सर यहाँ पे भी तो हमें कितना होगा, हमें दो फ्री सर्फेसेस मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? दो फ्री सरफेस मिलता है, तो देयर आर टू फ्री सर्फेसेस ऑफ कोर्स। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, फैक्टर टू क्लियर हुआ। फैक्टर टू का मतलब क्या? एवरीबॉडी, wherever you have air molecules coming in contact with the molecules of liquid, whether it's soap or water, it's called as free surface coming in contact. Is this clear? Yes, sir. Now suppose if I take a hot needle, अगर मैंने गरम नीडल लिया और उस गरम नीडल को मैंने सिर्फ सेंटर में टच किया तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो मैंने सर अंदर अंदर तुम आपने टच कर दिया, तो जैसे जैसे टेम्परेचर अंदर सोप मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज होगा, उनका जो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनका सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा। अगर उनका सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा तो सर ये जो थ्रेड आपको कैसे भी दिख रहा था, अभी वो थ्रेड क्या हो जाएगा सर? परफेक्टली सर्कुलर हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्सेस लगना शुरू हो जाएंगे, है ना? ये देखो, पहले एरिया ज्यादा था, अभी जैसे बाहर की तरफ गया, इट इज ट्राइंग टू अटेन मिनिमम पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस बिहेवियर इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अभी तो सिर्फ थियरी चल रहा है, क्योंकि ये सरफेस टेंशन का कंसेप्ट इज लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, ये टोटल एब्स्ट्रैक्ट है। इसको कैसे विजुअलाइज करवाना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज बेस्ड ऑन अ सिंपल एग्जांपल। So does surface tension is a temperature dependence? Yes. Does surface tension is an impurity dependence? Yes. Increase in impurity or decrease in impurity will change the surface tension we consider. Likewise, increase in temperature decreases surface tension. Surface tension it decreases with increase in temperature. Critical temperature at which surface tension of water becomes zero is 100 degrees Celsius of water we consider. Is this clear? Shall I erase this, students? Sir, wait. Okay. Done, sir.
Questions? There are some students who are without mics. That means they enter inside, but they are not, they just attend, but they are not able to hear me, not able, they don't want to attend the lectures at all. And maybe because of parents, they're just sitting into it. But they're not at all attending lectures. On करके बस ऐसे ही बैठा है, time pass कर रहा है, it seems. Okay, students, I told you about surface tension. Surface tension, that means the free surface of the liquid behaves like an elastic membrane. Are you getting it? The free surface of the liquids are under constant tension. We consider surface tension is of the liquid is defined as force acting normally. Answer सुनना. Force acting normally or perpendicularly per unit length of an imaginary wire, an imaginary line drawn on the free surface of the liquid, and this force acts only always tangential to the surface of the liquid. We consider. So T is equal to F by L. Newton meter inverse is its unit. Factor 2 playing a role is whenever there are two free surfaces coming in contact with the length, we use factor 2. Otherwise, we never use factor 2. Then further, does surface tension tries to attain minimum possible area? Yes. Thereby, the number of molecules will decrease, and therefore, the potential energy of the system also will decrease. Further ahead, do the surface tension is a temperature dependence? Yes. How is it? It is negative coefficient of temperature dependence. That means if the temperature increases, force due to surface tension of the liquid molecules will certainly decrease. That's what I made it very clear to you. Okay, friends. Now let us understand about a few examples on the surface tension. If you guys students, I told you that this was one example I gave you about soap film, formation of a soap film. Okay, दूसरा examples अगर मैं देखता हूँ तो surface tension का दूसरा example क्या होगा? It is said that water insects can walk easily on the free surface of a liquid. That means free surface of water. ये कभी सुना है students? Water insects walking freely on the free surface of water. कभी सुना? Students? Students, are you there? Can you hear me? This is the audience. Yes, sir. तो कभी तुमने सुना है वाटर इंसेक्ट्स कैन वॉक ईस्ट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड? कभी चाहो तो गूगल करना या यूट्यूब पे देखना. यानी कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो पानी के ऊपर चलते हैं लेकिन सिंक नहीं होते, डूबते नहीं है. किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से. एक सिंपल इलस्ट्रेशन में आप ट्राई करते हैं. नाम सुना. सोचो कि ये सरफेस है और ये तुम्हारा एक इंसेक्ट है. ओके, थिंक इन दिस मैनर. ये तुम्हारा एक इंसेक्ट है. ओके, और इसके ऐसे पाँव है, इसके पाँव ये इंसेक्ट है. ओके, ध्यान से सुनना. जब ये इंसेक्ट सरफेस के ऊपर होता है, ध्यान से सुनना, ये पूरा लिक्विड है, नीचे पूरा लिक्विड है. तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल है जो पाँव के साथ में है, दिस इज द लेग मॉलिक्यूल. देयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स over here, देयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स over here, देयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स over here. बट ये जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको नीचे के मॉलिक्यूल्स भी तो है ना, वाटर मॉलिक्यूल जो अट्रैक्ट कर रहा है. यानी ये जो लेग है उनके साथ में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? नीचे की तरफ किसका फोर्स एक्ट हो रहा है? सर ये फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. इसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे?
तो ध्यान से सुना, there are two kinds of attractive forces students. Everybody pay attention for this. Attractive forces students are of two types. एक होगा तुम्हारा force cohesive और दूसरा होगा force adhesive. फिर मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या और एडिसिव फोर्स का मतलब क्या? ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स है। कोहेसिव का मतलब क्या, एडिसिव का मतलब, चलो बताओ। जल्दी। Cohesive means force between the two water molecules. Sir, Okay, cohesive is due to the sticking nature of water. And what is force adhesive? Sir, adhesive. The force between the molecule and the surface. स्टूडेंट्स अट्रैक्टिव फोर्सेस दो है, कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या मालूम है? ये भी अट्रैक्टिव, ये भी है। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन atoms or molecules of same substances. Force of attraction between atoms and molecules of same substances, students. और ये है force of attraction between atoms and molecules of different substances. तुरंत स्टूडेंट्स के दिमाग में, अरे हाँ यार शिट, ऐसे कैसे भूल गया मैं, ऐसे कैसे भूल गई मैं, अरे यार अभी मम्मी ने सुबह मेरे पास से गम मांगा था, फेविक्विक मांगा था, वो टूट गया था। जब भी फेविक्विक मैंने हाथ में लिया था, तो मैं जब भी कुछ चीजें देखता हूँ या देखती हूँ, तो वहां पे मैं पढ़ता हूँ करके यार एडिसिव, उसके ऊपर वर्ड एडिसिव लिखा था। गम है, फेविक्विक है, फेविकॉल है, ये सारे क्या है? ये सारे एडिसिव्स है। उसके ऊपर लिखा होता है एडिसिव। एडिसिव का मतलब क्या? इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। सिंपल एग्जांपल, अभी तुम फेविक्विक लेते हो तो कोई एक मटेरियल होता है, कोई दूसरा मटेरियल होता है, उन दोनों को चिपकाते हो। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, दैट इज एडिसिव्स। तो ये होगा एडिसिव। तो ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें सपोज मैंने कोई सरफेस दिया, ध्यान से सुनना, मैंने कोई तुम्हें सरफेस दिया, देखिए ये सरफेस है, और फिर मैंने यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे है, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे रखा है। अगर बाई चांस ये वाटर मॉलिक्यूल मैंने इसके साथ में मर्ज करना चाहा, तो दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ मर्करी, मर्करी, वाटर, वाटर। अगर सपोज ये मर्करी मॉलिक्यूल है, ये भी मर्करी मॉलिक्यूल है, तो ये क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम सब्सटेंसेस, वो कोहेसिव हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, कोहेसिव फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एडिसिव फोर्स। अगर दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो कोहेसिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। Atoms and molecules, the force of attraction between atoms and molecules, same substances is always greater than the adhesive force. What is the ratio to which they consider the cohesive force or adhesive force is inversely proportional to what? Cohesive force is inversely proportional to the 8th power of the distance between the atoms and molecules of the substance. Inversely proportional to the 8th power we consider. यानी अगर distance कम होता है तो force बढ़ जाता है, अगर distance बढ़ेगा तो force कम हो जाएगा। 8th power we consider. यानी ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस दो टाइप के, यानी यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे, हम अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स वी कंसीडर, एक होगा कोहेसिव, दूसरा होगा एडिसिव। दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा है? कोहेसिव है। क्यों भाई? क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस है, एक डिफरेंट सब्सटेंस है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी मैंने वाटर इंसेक्ट लिया था, तो ये इसका पाँव है, दिस इज व्हाट वी कंसीडर एज अ वाटर मॉलिक्यूल। कैन आई से देयर आर लॉट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिलो इट, यानी नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है? हेलो, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है? तो बोलेगा सर कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, स्ट्रॉन्गर है। अभी देखो, जैसे ही इंसेक्ट मूव होना चाहेगा तो क्या करेगा? वो अपना पाँव ऊपर करेगा। जैसे वो अपना पाँव ऊपर करता है स्टूडेंट्स, तो वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अपने साथ में बाहर निकाल देता है। स्टूडेंट्स, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, अभी देखो इसने अपने बाहर निकाल दिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 वाटर मॉलिक्यूल्स है, अगर उसने अपने दो पाँव उठा दिए तो मे भी शायद उसने 20 मॉलिक्यूल्स उठा दिए, अभी 80 मॉलिक्यूल्स बचे। तो 80 मॉलिक्यूल्स बचने से हुआ क्या? हुआ क्या सर? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी क्या होगा? द मेम्ब्रेन विल श्रिंक, द मेम्ब्रेन Yes, विल sir.
श्रिंक, क्योंकि 80 होगा तो सारे 80 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तुरंत श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। और वो श्रिंक नेचर इस इंसेक्ट को 2 पांव के ऊपर खड़ा करेगा, Yes, आराम sir. से खड़ा करता है। लेकिन जैसे जैसे वो वापस अपने 2 पांव अंदर डालेगा, पीछे के 2 पांव उठाएगा, यानी जैसे उसने उसने डालना शुरू किया तो वो 80 के वापस कितना होगा, 100। Again he lifts it, again puts it back, again lifts it, again puts it back. So the surface of molecules are dragged out, dragged in, dragged out, dragged in. Means all the time the elastic potential energy of the membrane goes on changing, and that causes the insect to walk easily on the free surface. A simple example, student, अगर elasticity ज्यादा होगा, elasticity का मतलब क्या, arrangement of atoms and molecules. अगर कोई atoms and molecules ज्यादा साथ में होंगे तो बंदा चल सकेगा कि नहीं ऊपर से आराम से, लेकिन वही अगर स्पेस ज्यादा हो गया तो will not be able to. The elasticity we consider is due to what? Is due to the change in the number of molecules on the free surface. Are these molecules on the free surface? Yes. Where are they in contact with? They're contact with air. They're coming in contact with air. So water intakes can walk easily on the free surface of the liquid because of elasticity on the free surface of the liquid. And the surface molecules behave like an elastic membrane. The surface of the liquid always tries to maintain a certain constant potential energy. That is, will always try to attain minimum possible area. Is this clear with all of you all? Yes, sir. Yes, sir. All of you all, all of you all. Yes, students. There are two kinds of forces. Force the force, and it is force to consider force. Force is the attractive force, and it's the force is again an attractive force. Okay. Inverse proportional to the 8 power we consider. और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, और एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर तुम पेन ब्रश के बारे में बात करते हो, स्टूडेंट्स हैव यू ऑल यूज्ड अ पेन ब्रश? ओके, ये है बीकर कंटेनिंग वाटर। अगर तुम कोई पेन ब्रश को देखोगे ना स्टूडेंट्स, अगर तुमने पेन ब्रश को देखा होगा ना स्टूडेंट्स, ये देखो, ये पेन ब्रश होता है और इसके ब्रिसल्स है। ठीक है, उसके ब्रिसल्स ठीक है कि सारे पेन ब्रश के ब्रिसल्स है। सूखे होते तो सारे अलग अलग होते। अभी ध्यान से सुनना, जैसे ये पेंट ब्रश तुम इस बीकर जो इसमें पानी है उसके साथ में कांटेक्ट में करोगे तो क्या होगा, ये देखो ये सारे ब्रिसल्स है। ऑटोमेटिकली ध्यान से सुनना, ब्रिसल्स स्प्रेड आउट होना शुरू करेंगे, यानी ये ब्रिसल्स अंदर जाएंगे लेकिन ऑटोमेटिकली स्प्रेड आउट करना शुरू हो जाएंगे। क्यों? रीजन क्या? रीजन क्या? रीजन क्या? व्हाट्स द रीजन? तुम लोग जैसे ये ब्रिसल्स पानी के साथ में कांटेक्ट, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स उस ब्रिसल्स को अपने डायरेक्शन में लेके जाएगा, बाकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उस ब्रिसल्स को वो उसके डायरेक्शन में लेके जाएगा। यहाँ के मॉलिक्यूल्स इस ब्रिसल्स को अपने डायरेक्शन में लेके जाएगा, तब जाके क्या होगा, ये जो ब्रिसल कह रहे हैं नजदीक, तभी क्या होगा, अब ये सारे स्प्रेड आउट हो गए। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. Now what exactly do you consider? यानी ये कौन सा फोर्स की वजह से जा रहा है सर? ये कोहेसिव फोर्स की वजह से जा रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ये पेन ब्रश को बाहर निकाल रहा हूँ। जैसे तुम पेन ब्रश को बाहर निकालोगे तो तुम्हें कैसा शेप दिखेगा? कैसा शेप दिखेगा? लाइक अ फ्लेम, है ना? Yes, sir. Yes, sir. सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर यानी एक फ्लेम शेप दिखेगा। क्यों? रीजन क्या? नहीं, जैसे तुमने बाहर निकाला तो हुआ क्या सर, आपने जो मॉलिक्यूल इसके साथ में था उसको तो निकाल ही रहे हो, उसके साथ में दूसरे मॉलिक्यूल्स भी ड्रैग होके आ रहा है ऊपर से। ये जो फाइबर, ये जो ब्रिसल था उसके आजू बाजू में वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल है, इसके यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसके राइट में, लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, राइट में, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा?
अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। और जैसे तुमने पेंट ब्रश को निकाल दिया तो हुआ क्या सर, यू रिमूव सम मॉलिक्यूल्स ओवर हियर। सोचो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स है, जैसे तुमने पेंट ब्रश को निकाल दिया, व्हाट हैपेंस इन दैट केस, यू ट्राई टू रिमूव, यानी तो यू रिमूव सम फ्यू मॉलिक्यूल्स, 20 molecules you removed it, but at the same time 20 molecules from the bottom also took its place। क्योंकि जैसे तुम पेंट ब्रश को बाहर निकालोगे ना स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूल्स चिपके हुए वो तो निकलेंगे, लेकिन जैसे जैसे तुम ऊपर लेके आते हो फिर डिटैच करते हो, तो ये वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से वापस नीचे के नीचे रह जाता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे के ऊपर आ जाता है, एंड देयरबाय द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैज मेंटेन्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज आल्सो वी कॉल एज इलास्टिसिटी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is this clear with all of your students? So we learned about the concept of elasticity we consider, that is a free surface of the liquid behaves like an elastic membrane we consider, and the surface of the liquid always tries to attain minimum possible area, thereby attaining a minimum possible potential energy, and the energy all the time remains constant। Cohesive force अगर किसी ने पूछा तो तुम्हारा मतलब क्या है, force of attraction happens upon different substances, adhesive force between different substances कौन सा greater है, cohesive हमेशा adhesive से stronger होगा। क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ? Let me know, Yes, sir. अभी एक दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट करना है। Then tell me what exactly you came across। Students, this experiment I want to try it out at home। क्या करो और बताओ, एक नीडल लो, नीडल, ठीक है, पतला सा नीडल लेना, एक नीडल बोल रहा हूँ पतला सा, वेरी वेरी फाइन नीडल यू कंसिडर, देयर आर वेरी थिन वायर, अगर हो सके तो कॉपर वायर या वैसे कुछ तो भी लेना, लेकिन बहुत पतला। और तुम क्या करो मालूम है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ओके, यू टेक अ टिश्यू पेपर, ओके, एंड उस नीडल को उस टिश्यू पेपर पे रखना, और फिर वो टिश्यू पेपर एक बाउल लेना जहाँ पे या छोटा सा कंटेनर लेना जहाँ पे पानी है, और उस टिश्यू पेपर को एकदम जेंटली उसके ऊपर रखना। तो होगा क्या, लिटरली मैंने एक नीडल लिया है, मेटालिक नीडल लिया है, उसको टिश्यू पेपर पे रखा है, नीडल इज वेरी थिन and length is finite, not very long, okay, short needle we consider, okay, and then I place it on in a beaker containing water, what is going to happen, anyone, क्या होगा? Hey students, can you tell me what's going to happen?
tissue paper will sink. हाँ, टिश्यू पेपर विल सिंक। और नीडल का क्या होगा? नीडल का क्या होगा? जैसे टिश्यू पेपर पानी के अंदर सोक हो जाएगा और नीचे सिंक होगा, नीडल भी क्या होगा? सिंक हो जाएगा। क्यों? रीजन क्या? बताओ, रीजन क्या? Yes, anybody can tell me the reason why the needle is going to sink? क्योंकि तुम अगर उस नीडल को देखोगे ना स्टूडेंट्स, ये जो ये नीडल है, सपोज ये नीडल, तो ये तुम्हारा नीडल हुआ क्या है सर? ये नीडल मेरा एक इमेजिनरी वायर बन गया है। इट्स एन इमेजिनरी लाइन। Where exactly the needle was placed? So the needle was placed on the free surface of the liquid. There was liquid below it also. That means there were water molecules coming in contact with the needle throughout. क्योंकि तुम्हारा टिश्यू पेपर सोक हो गया नीचे, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द लेंथ है, उनके साथ में ये मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे भी ये मॉलिक्यूल्स है। एयर, एयर इनके साथ में कॉन्टेक्ट में आ रहा है, एयर इनके साथ में कॉन्टेक्ट में आ रहा है, लेकिन ये दो फोर्सेस जा रहे हैं इक्वल एंड मैग्नेट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये जो नीडल है स्टूडेंट्स, उसकी जो नीचे के है फोर्सेस, देखो ना स्टूडेंट्स, यहाँ का एक फोर्स, स्टूडेंट्स यहाँ का एक फोर्स और यहाँ का फोर्स, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना? ये अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो सकता है। लेकिन मैंने बोला नीडल सिंक हो रहा है, क्यों? क्यों? रीजन क्या है? तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे जो फोर्सेस आ रहे हैं उनके फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होगा, तो नीचे वाला होगा मॉलिक्यूल्स कर्व के अंदर, उनका इफेक्टिव कोर्सिव फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? द वेट ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर नीडल, तो तुम बोलोगे सर इट्स अ कोहेसिव फोर्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस द वेट ऑफ द नीडल। ये फोर्स है जो नीडल को नीचे की तरफ खींच के लेके जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? साइड में फोर्सेस तो कैंसिल हो गए। एग्रीड? Yes, sir. Are you getting students? Is this clear? और अगर सपोज मैं थोड़े से जो स्लांट मॉलिक्यूल्स होंगे, ध्यान से देखना, कुछ मॉलिक्यूल्स स्लांट होंगे, ये वाला और ये वाला, अगर उनका फोर्स मैं ऐसे लेता हूँ तो उनका जो अगर मैं कंपोनेंट ले लिया, ये फोर्सेस का अगर मैंने कंपोनेंट ले लिया, गेटिंग इट? इन दिस केस ये क्या हो जाएगा? cos थीटा, ये भी cos थीटा। ये फोर्सेस कंपैरेटिवली कम होंगे, ये जो फोर्सेस होंगे कंपैरेटिवली कम होंगे बिकॉज़ दे आर वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू द मॉलिक्यूल्स बिलो। तो ऊपर का तुम्हारा फोर्स ये फोर्स से कम हो जाएगा, इसलिए वो सिंक हो रहा है। तो अभी पता चला नीडल सिंक क्यों हो रहा है। अभी वापस ये एक्सपेरिमेंट करो, अब देखा अभी क्या करना है। यही नीडल लो, सेम पानी, सेम टिश्यू पेपर, लेकिन अभी तुम क्या करो, उस नीडल के ऊपर ग्रीस लगाओ। ग्रीस पता है, लुब्रिकेंट जो मशीनरीज में लगता है। चलो अगर ग्रीस नहीं है तुम्हारे घर के अंदर तो शायद विक्स की बॉटल होगी, है ना, विक्स का जेल, तो उसको हल्के से जेल लगा के उसको रख देना, या घी होगा ना, घी घर के अंदर, मक्खन, मक्खन, ओके। सपोज अगर तुम्हें तुम्हारे हाथ मक्खन वाली लगा, मम्मा ने कुछ मक्खन बनाया और तुम्हें ऐसे चोरी करके खाने का मन हो रहा है, ओके, तो तुमने मक्खन लेके ऐसे मुंह में डाल दिया, फिर उसको वॉश करने जाओ, तुरंत मम्मा देख रही है तो वॉश तो नहीं होगा, वॉश तुम्हारे हाथ में पूरा ऐसा वाटर मॉलिक्यूल्स विल स्टिक टू इट, वो वॉश नहीं होगा बराबर, क्योंकि सरफेस टेंशन बहुत ही कम हो गया इन दैट, द वाटर मॉलिक्यूल्स विल नॉट बी रिपेल्ड इन दैट केस, they will not remove the greasy part of it, the sticky part of it। तो सेम थिंग यहाँ पे भी है, तुमने नीडल लिया है, उसके ऊपर ग्रीस या तूने वैसे लगा दिया, अभी क्या होगा? तो सेम डायग्राम, वापस देख डायग्राम सारा, वही नीडल, वही यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स के फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो तो कैंसिल हो जाएंगे। किसी के कंपोनेंट होंगे, वो वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है, वो वर्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ है। लेकिन मुझे बताओ, अगर ये नीडल है, नीडल के ये मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनना, ये नीडल के मॉलिक्यूल्स है। मुझे ये बताओ, ग्रीस नीडल पे लगा हुआ है, तो नीडल के साथ में किसका लेयर होगा? ग्रीस का लेयर होगा कि नहीं होगा? यानी ये Yes, ग्रीस sir. के मॉलिक्यूल होंगे, ये सारे ग्रीस के मॉलिक्यूल्स होंगे। अभी तुमने उसको टिश्यू पेपर रख के रखा है और फिर उसको पानी के ऊपर रखा है। अभी देखो, अभी तुम्हारे यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये ब्लू वाले वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। अभी स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, क्या कोहेसिव फोर्स
कोहेसिव फोर्स जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के, वो क्या सफिशिएंट होंगे उस नीडल को नीचे लेके आने के लिए? No, sir. यानी यहाँ पे तुम्हारे ये कोहेसिव फोर्स ऑलमोस्ट कम हो गया है, सिर्फ वेट ऑफ द मॉलिक्यूल है, और वो वेट किससे बैलेंस कर रहा है? कंपोनेंट के फोर्स से बैलेंस कर रहा है। यानी थोड़े थोड़े कुछ इंक्लाइन वाले फोर्स होंगे ना, ये इंक्लाइन वाले, उनका जो कंपोनेंट रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है वो mg को बैलेंस कर रहा है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे तुम्हारा नीडल सिंक नहीं होगा। The needle will simply float on the free surface, but which needle? A needle when coated with grease. क्योंकि ये ग्रीस मॉलिक्यूल्स है, ग्रीस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? वाटर को चिपकाने नहीं देंगे। यानी ग्रीस और वाटर के बीच में ऑफ कोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन वो बहुत ही कम होगा। इट्स अ नेगेटिव फोर्स व्हिच इज बहुत ही कम होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स विल नॉट स्टिक टू इट, विल नॉट स्टिक टू इट, क्योंकि ग्रीस लगा हुआ उसके ऊपर, तो रिपेल करेगा इसका। यानी ये नीचे की पॉजिटिव फोर्सेस है बाकी सारे मॉलिक्यूल्स का, उसका इफेक्ट बहुत कम हो गया, ड्रास्टिकली जीरो हो गया। तो बचा क्या? नीचे सिर्फ mg बचा, ऊपर कौन सा है? कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहा है, जो कुछ डायगोनल फोर्सेस होंगे वो पूरा वेट को बैलेंस कर रहा है। पहले वो बैलेंस नहीं कर रहा था, पहले नीचे वाले फोर्स ज्यादा थे, तो सिंक हो गया। यहाँ पे भी सिंक नहीं होगा। अभी समझ में आया सरफेस टेंशन का मतलब क्या? Yes, sir. कैन आई इरेज दिस? Yes, sir. Yes, sir. So now I'll give the formula. Force due to surface tension P is equal to F acting normally per unit length Newton meter inverse. Is that clear? Force due to surface tension is a scalar quantity. ये ध्यान में रखना, it's a scalar, not a vector. Is that clear? Factor 2. Factor 2 plays a role only when we consider two free surfaces. Okay. अभी इसी के रिलेटेड में एग्जांपल्स देगा, ध्यान से सुनना शुरू अभी अभी ध्यान से देखना. Suppose if I give you surface of a liquid, this is the first diagram. Okay, this is the container having surface of the liquid, and there's a needle. Okay, floating on free surface. Second diagram. Okay, or a thin wire, needle or a thin wire. Now, if the same thin wire is formed into a ring, a thin uniform ring, and that is placed on the free surface of the liquid. The answer सुना students. Okay, ये second diagram. ये सारे प्रॉब्लम्स के हिसाब से दे रहा हूँ. जब इसके प्रॉब्लम्स होंगे फिर मेरे को पूछना नहीं कि कैसे आता आंसर. अभी मैं सिखा दे रहा हूँ. थर्ड वाला वापस फ्री सरफेस. ओके, ये वापस थिन रिंग. थिन यूनिफॉर्म रिंग. एक मैंने क्या किया मालूम है, यहाँ पे स्टूडेंट्स थिन यूनिफॉर्म रिंग के अंदर मैंने क्या किया मालूम है, एक इक्विलिब्रियम बैलेंस बिठा दिया. तो दिनों वाले क्या किया, इक्विलिब्रियम बैलेंस. यानी मैंने क्या किया मालूम है, ये रिंग को मैंने मैंने स्ट्रिंग से बांध दिया.
ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम बैलेंस है। ये रिंग है और रिंग को मैंने बांधा है धागे से। मेरा क्वेश्चन है हाउ मच इज द वेट अप्लाइड, हाउ मच इज द फोर्स अप्लाइड, फोर्स नीडेड। यहाँ से जो है ना फोर्स नीडेड जस्ट टू डिटैच द रिंग। मैं गेट। अभी ये सारों में मैंने क्या किया मालूम है, मैंने सारों में मैंने सोप सोल्यूशन दे दिया। चलो सोप वाटर दे दिया, सोप सोल्यूशन। ओके, ये भी सोप सोल्यूशन, ये भी सोप सोल्यूशन। फोर्थ डायग्राम वापस सरफेस। अब मैंने क्या किया, एक थिन सर्कुलर प्लेट लिया, थिन सर्कुलर प्लेट। ओके, फिफ्थ डायग्राम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। मैंने लिया ये सोप सोल्यूशन वापस। मैंने क्या किया, रेक्टेंगुलर लूप लिया इसमें। अब मेरा क्वेश्चन तुम्हें ये है, ये सारे क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ, कैन यू गिव मी द फॉर्मूला फॉर द आंसर सुना सुन दो। आई वांट यू टू गिव मी द फॉर्मूला फॉर surface tension of soap solution in all the following cases, considering a thin wire or a needle floating on the free surface of soap solution. Second case, a thin uniform ring is floating on the free surface of soap solution. यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, how much is the force needed just to detach the ring from the free surface of the liquid? I getting it? तो मुझे सारों में क्या चाहिए, I want the formula for force due to surface tension in all of them. Force चलो find out करो, not tension. Surface tension of soap solution सब में constant रहेगा because liquid is the same. It depends on the nature of the liquid. सबका temperature भी same है. तो मुझे चाहिए formula for force due to surface tension for a thin wire, for a ring, force required just to detach, force due to surface tension for a thin circular plate, force due to surface tension for a rectangular loop on a soap solution. Give me these answers. I'm giving you all 5 minutes for this. Fast.
Yes, anybody? Formula for force is the surface tension for a thin uniform wire placed on the free surface of a soap solution. Soap ring placed on a free surface of soap solution. A thin uniform ring. How much is the force required just to lift? A thin circular plate thickness negligible है. Circular plate का thickness negligible. और दूसरा एक rectangular loop यानी hollow loop है. Wire, thin wire, thickness negligible. Give me the formula for force due to surface tension in each case. क्या किसी को मालूम है how to go about this? रुखसार ने पहला आंसर दिया है और वो सही आंसर है. वेरी गुड रुखसार. मुझे सारे आंसर्स दो रुखसार. सारे आंसर्स एक साथ में दे दो. One pass answer. What about the rest of the students? Priya, Renuka, Suchar, Aishi, Aditi, Aditi Yadav, Aditya, Alok, Anjali. Come on, Daksha, Solanki. What are you doing, Daksha? Are you getting it? Try कर रहे हो? Yes, sir. Right. Very good. Hitanshu, Jai, Sai, Kamli, Kanesh. कुंज क्या कर रहे हो कुंज? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुंज, ओम शिंदे, ऋषि, what about you ऋषि? सुमित, कुंज को नहीं आ रहा, क्या कर रहा है कुंज? Okay, students, can I give an answer to all these questions? क्या मैं आंसर दे दूं? Students, first of all, ये जो मैंने फॉर्मूला दिया है ये किसके लिए है? Surface tension is force acting normally for unit length of an imaginary line. तो अभी तुम यहाँ पे देखोगे तो मेरे हाँ सर ये भी तो एक लेंथ है, ये रिंग ये भी तो लेंथ है, वही लेंथ को हम लोग ने ऊपर सर्कल करके रख दिया, ये भी तो लेंथ है, ये है डिस्क, उसका लेंथ विल बी द सर्कमफरेंस, ये भी तो लेंथ है. तो अभी मैं अगर देखूं तो ध्यान से देखना, अगर मैंने ये नीडल दिया है स्टूडेंट्स, so there are molecules on the left hand side as well as on the right hand side. There are forces exerted on these particular molecules on either side, tangential force. लेकिन air comes in contact with the left hand side molecules as well as with the right hand side molecules. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? T is equal to F upon 2L students. मैंने क्या पूछा है? फॉर्मूला फॉर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. तो F क्या होगा? T into 2L. क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ सबको?
क्या स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? व्हाई एम आई यूजिंग फैक्टर 2? बिकॉज देयर आर टू फ्री सर्फेसेस. हाउ डू वी प्रूव टू फ्री सर्फेसेस? तो बोलेंगे सर एयर मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल्स के साथ में कांटेक्ट में आ रहा है, इस मॉलिक्यूल से भी कांटेक्ट में आ रहा है. तो वही चीज यहाँ पे देखो ना, अगर यही चीज को मैं बेंड करता हूँ तो बोलेगा सर मॉलिक्यूल्स अंदर भी है, मॉलिक्यूल्स बाहर भी है. रिंग का तो थिकनेस आपने छोटा ले लिया, नेग्लिजिबल ले लिया, तो एक लाइन ही होगा. यानी सर एयर मॉलिक्यूल्स अंदर के मॉलिक्यूल्स के साथ में भी कांटेक्ट में आ रहे हैं, एयर मॉलिक्यूल्स बाहर के साथ में भी. तो यहाँ पे टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन लेंथ इन कॉन्टैक्ट. व्हाट इज द लेंथ इन कॉन्टैक्ट? सर ये तो लाइन था, स्ट्रेट लाइन था, इसलिए एल था. ये तो अभी सर्कल हो गया, तो 2 पाई स्मॉल आर. ऑफ कोर्स लेंथ. व्हाट इज द फॉर्मूला? सरफेस टेंशन इज इक्वल एफ अपॉन लेंथ. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कल? 2 पाई आर सर्कमफरेंस. लेकिन क्या मैं फैक्टर 2 यूज करूं? स्टूडेंट्स कैन आई यूज फैक्टर 2 over here? आया ना? Yes. Q2, what's the reason multiply by 2? क्यों? क्योंकि air molecules are having force on the inner molecules वाला जाकर. अभी देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा? F upon 2 2s are 4 pi. क्या ये समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. जब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकोगे. यहाँ पे स्टूडेंट सारे मार खाते हैं, फैक्टर 2 कभी लेना है और कभी नहीं लेना. अभी यहाँ पे देखो वापस, अभी देखो ये क्वेश्चन मैंने चेंज ही कर दिया. फोर्स नीडेड जस्ट टू डिटैच द रिंग. अभी ध्यान से देखना, ये स्ट्रिंग से यहाँ पे बांधा हुआ है, ये पैन है, मैं यहाँ पे वेट डालते जा रहा हूँ, वेट डालते जा रहा हूँ. तो मुझे ये बताओ, इसके पहले वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, नीडल सिंक क्यों हो रहा था? क्यों सिंक हो रहा था? तो मतलब सर कोहेसिव फोर्स और वेट दोनों जा रहा था. अगर नीडल को बैलेंस कर रहा है ऊपर की तरफ, ये दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है. यानी अगर ध्यान से देखना, अगर सपोज तुमने वेट डाला है और इस तुम रिंग को ऊपर उठाना चाहोगे, अगर तुम इसको वेट मिनट में जान, अगर तुमने रिंग को सपोज ऊपर उठाया भी, तो देखो तुम्हें कैसे डायग्राम दिखेगा मालूम है? ये जो सोप मॉलिक्यूल्स है ना, सोप का लेयर ऐसा आएगा, ये तुम्हारा फ्री सरफेस है, तुम्हें ऐसा डायग्राम दिखेगा. और ये जो तुम्हारा नीडल, ये जो तुम्हारा रिंग है ना, उसके साथ में ये थ्रेड बांधा हुआ है, ये धागा बांधा हुआ है, और यहाँ पे तुम्हारा दूसरा पैन रखा हुआ है. स्टूडेंट्स ये तुम्हारा बीकर है, ये बीकर है जहाँ पे सोप सोल्यूशन है. जैसे जैसे तुम वेट डालना शुरू करोगे ना, तो क्या होगा मालूम है? रिंग ऊपर आना चाहेगा. जैसे वो रिंग ऊपर आएगा तो ये जो सोप फिल्म है, एक फिल्म फॉर्म होगी. There's a film form we consider inside as well as outside we consider. लेकिन मैंने क्या पूछा? What is the force required just to detach the ring? Force required to detach का मतलब क्या हुआ? सर यहाँ पे एक तो cohesive force भी एक्ट कर रहा है, ऊपर से उसका वेट भी एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे मुझे टोटल फोर्स कितना डालना पड़ेगा? How much should be total force so that it should detach? सर दोनों का समेशन से ज्यादा. यानी कैन आई से force needed just to detach the ring will be the cohesive force plus the weight of the needle. क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अभी देखो, अभी तो फोर्स ऑफ कोहेसिव है जो इसको होल्ड करके रख रहा है, mg भी एक्ट हो रहा है. लेकिन अगर बाय चांस मैं थोड़ा सा और वेट डाल दिया तो कोहेसिव फोर्स टूट जाएगा और ये बाहर आ जाएगा. आर यू गेटिंग? सो व्हाट इज द एडिशन? अगर उन्होंने पूछा व्हाट इज द एडिशनल वेट रिक्वायर्ड, एडिशनल वेट रिक्वायर्ड, अगर एडिशनल वेट पूछा ना तो सिर्फ mg आएगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. प्लीज ऑल ऑफ Yes, यू, sir. दिस इज क्लियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, दैट टाइम डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अब देखो ये तुम्हारा तीन सर्कुलर प्लेट है, चलो, एंड दिस प्लेट इज फ्लोटिंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड वी कंसीडर सोप सॉल्यूशन है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो बोले सर यहाँ पे तो सोप मॉलिक्यूल्स अंदर तो आपका ऑब्जेक्ट है, यानी सोप मॉलिक्यूल तो बाहर की तरफ ही है थ्रू आउट द लेंथ, और एयर जो होगा इट्स कमिंग इन कांटेक्ट ओनली विद द आउटर मॉलिक्यूल्स, अंदर तो सॉलिड है. फ्री सरफेस का मतलब क्या? लिक्विड मॉलिक्यूल्स कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर, ओनली वन लिक्विड जो बाहर की तरफ है. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? सर यहाँ पे फॉर्मूला होगा T इज इक्वल टू F. अगर मैं रेडियस को कैपिटल देता हूँ तो 2 पाई r, खत्म. फैक्टर 2 आएगा ही नहीं यहाँ पे,
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर अंदर तो मॉलिक्यूल्स है नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ ही है, और एयर सिर्फ बाहर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करवा रहा है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. So Yes, therefore, sir. material force due to surface tension it's T into 2 pi r आगे। Now इसका आंसर दे सकते हो स्टूडेंट्स? रेक्टेंगुलर लूप, चलो इसका आंसर दे दो फास्ट, लेट्स सी who's the smartest one for this rectangular loop। I'm getting this answers T12, 12, T12, 12. Ruksar, you have given the answer. फिफ्थ का आंसर रुखसार ने दिया है। रुखसार अभी देखता हूँ तुम्हारा आंसर दिया, बाकी सारा ऐसे ही चुप बैठे हैं। स्टूडेंट्स इसका क्या आंसर होगा ध्यान से देखना। सिंपल है, ये रेक्टेंगुलर लूप है माय डियर, तो इसको ले लो ना लेंथ, इसको ले लो ना ब्रेथ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? टी। एफ कौन सा है? ये एफ का मतलब क्या मालूम है? कि एफ का मतलब कोहेसिव फोर्स। देखो इसके नाम क्या है? कोहेसिव फोर्स और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये भी है, दोनों एक ही है। अपॉन अपॉन लेंथ इन कांटेक्ट, बोलो ना लेंथ इन कांटेक्ट क्या होगा? ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा? पेरीमीटर। स्टूडेंट्स व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? छठवीं सातवीं में पढ़ा है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। दूसरी बात, मॉलिक्यूल्स ये हॉलो है, ये रेक्टेंगुलर लूप मैंने दिया है, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप अंदर भी है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप बाहर की तरफ भी है। तो अगर तुम एयर को देखोगे तो एयर मॉलिक्यूल्स इसके साथ में भी एडिसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स के एडिसिव फोर्स इसके साथ में भी हो रहा है। तो सर देयर आर टू फ्री सरफेसेस, तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो अभी देखो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? therefore P is equal to F upon 4 into bracket L plus। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Was it a rocket science? कुंज, क्या ये रॉकेट साइंस है? हाँ कुंज, I answered, sir. हाँ Answer किया मैंने सर. अच्छा, मैंने देखा ही नहीं तुम्हारा आंसर। Okay students, so we wind up over here itself only. Today we'll be doing force due to surface tension and that's acting along the length. Next lecture will be going with respect to area. We'll be solving certain more questions also. लेकिन जो कुछ भी दिया है स्टूडेंट्स इसको ध्यान से रीड करना, ब्राउज करना, go through it and revise the previous formulas also. Don't just sit into the lectures without revision. Okay? Chalo, we'll wind up the sessions. Okay?